द सिंपल लॉजिक इज व्हाट, यहाँ पे जो भी इसके पीछे का कोड है उसको इग्नोर कर सकते हैं और इसके बाद वाले कोड को हम एक नए अरे की तरह ट्रीट करेंगे. सो योर न्यू अरे बिगिंस फ्रॉम दिस. सो व्हाट आई चेंज दिस, यहाँ पे हमने पिछले कोड में देखा होगा, यहाँ पे हमने लिखा था 0. सो और यहाँ पे भी हमने लिखा था 0. इन दोनों को हमने चेंज करके 80 कर दिया. दैट इज ऑल. नाउ द थिंग इज डन, राइट? सो दिस वे you can insert the element at any given index position. Then you have deletion. So deletion is deleting an element from any given position or from the last or from the first. The same as insertion, except you are moving an element out of the array. When you say beginning of the array, the index position is 0. So what will happen is, अगर आपके पास elements थे 11, 31, 51, 17, 18, and if you are removing this 11 logically, so what will happen is 31 should be shifted here, 51 should be here, 17 should be here, and 18 should be here. So आप question कर सकते हैं, what will be there at 18th place? 18 पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. 18 पे अभी भी 18 की कॉपी पड़ी होगी. If you want this to be logically gone, place something which is not meaningful to this context. अगर ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता था तो हम यहाँ 0 रख दें. Then you can say there is no data now which is logically true for this context, or say put -1. That is also fine. But remember, क्योंकि ये सिमिलर टाइप का होता है, तो आपके ना कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या कोडिंग कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए. Otherwise, it is possible that you may sometimes need to insert that particular element only, right? And so you can say I shouldn't insert infinite, but infinite is a mathematical term which actually for programming it does not exist. Infinite नहीं होता कुछ भी. आपको वहाँ पे एक वैल्यू माननी पड़ेगी 10. Now for your context, for this particular context, if I say 10 is an infinite number, then fine, put 10 here. Right? So like this. अब यहाँ पे भी हमने सिंपल सा कोड लिखा है. You simply have to store at the beginning, delete from the beginning. So what you do? Start shifting everything from the right side. So second element से सबको उठा के हम अगले वाले पे कॉपी कर रहे हैं. So ऐसे 0 से हमने स्टार्ट किया है और इंडेक्स तक जा रहे हैं, which is j-1 तक. और यहाँ पे ये सिमिलर कोड है, so that I should not move forward. Because of this you may get error, so ये कोड लिखना जरूरी है. A of I, the first value जो आया 0 पे, हम फर्स्ट वाले के फर्स्ट इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कॉपी कर दिए. If keep on running, everything will be moving towards this side to this side. And at the end of this code, you will have 31, 51, 17, 18, and 18. This is because of this code. If you put something at this place which is infinite, you will have some other value also. बट तुम्हारा एक्चुअल जो डेटा था वो शिफ्ट हो गया. ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज 31 पहले फर्स्ट इंडेक्स पे था, अभी ये 0th इंडेक्स पे. दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांटेड, टू डिलीट समथिंग टू रीअरेंज. इफ यू डिलीट फ्रॉम द एंड, नथिंग बट सिंपली नॉट एक्सेसिंग इट. आप अगर लॉजिकली कह दो कि हम उसको एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं, इट इज गॉन एक्चुअली. और इंसर्ट सम मीनिंगलेस डेटा ना इन द वर्किंग कंटेक्स्ट. जिसका इस कंटेक्स्ट में अगर कोई मीनिंगलेस डेटा है तो उसको वहां इंसर्ट कर दो ना. दैट विल बी ना काइंड ऑफ डिलीशन ऑफ दैट एलिमेंट. यू आर नॉट गोइंग टू फिजिकली श्रिंक द साइज ऑफ द अरे. अगर 10 एलिमेंट का अरे डिक्लेयर किया था और 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अरे ऑफ 8 एलिमेंट. यू विल स्टिल हैव 10. But those two places will have some value which is of no use, and you can logically say that the place is actually empty. Then you have deletion. So deletion of element at any particular possible given index. So हमने यहाँ पे 80 लिया. अब 80 लिया, जैसे हमारा कोड था 11, 21, 31, 51 एंड से यही था 17. अगर हम इसको लें और हम 31 यानी कि इंडेक्स 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, so what will happen? Shift everything towards left side. That is all. So similar इंसर्शन के केस में जैसे हमने जहां से भी जिस इंडेक्स
की भी बात हम कर रहे थे, जिस पे एलिमेंट इंसर्ट करना था उससे हम राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब हमें यहाँ से काम करना है, सो अब हमारा अरे ये बन गया, यानी कि इधर से एक इंडेक्स शिफ्ट करना पीछे पीछे शुरू हो जाए। सो 0 इज रिप्लेस्ड बाय 80, that is all, because you will be moving towards right side automatically, because j is at the at the end of your array। j की जो वैल्यू है वो लास्ट इंडेक्स के बाद पॉइंट करता है, हम वहां पे कम रह रहे हैं। तो you just have to replace 80, use 80 here, not 0। 0 अगर कहें तो हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, अगर 80 कहें तो 80 किसी भी इम्पॉसिबल इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, सो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। तो दिस वाज इंसर्शन एंड डिलीशन, वेरी टू important operations and traversal। We'll see the search concept in next class। For now, I'll show you the code and the answer and the actual code, where you will see everything from main to printing the output of the modified array। I hope सबको दिख रहा होगा। You can see code block there। You can see first part जो हमने यहाँ कोड लिखा था, जो फर्स्ट एग्जांपल था ना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। You have a main program, there you have an array, जो एग्जांपल में लिखा गया है, same array of 5 elements 11, 31, 51, 17 and 18, and this is how you are setting j to size of the array। I initialized to 0, and this is variable 80, I have simply initialized it to 0, of no use। You are scanning, you are reading 80 value from user, enter the index where you want to insert or maybe delete। in the same context, जिस context में बात करेंगे उसको हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, and this is traversal code, is simply printing, from beginning till end you are simply printing it। From there, this place it is the beginning of insertion। So this code you have seen it, हमने वही डिस्कस किया था वहाँ पे, सेम कोड। तो सही, अगर हम ये बात करें कि हमने पहली बार में एक 20 इंसर्ट किया बिगिनिंग पे, फिर हमने 30 इंसर्ट किया लास्ट में, और 50 इंसर्ट किया एट एनी गिवन पोजीशन। I'll say I will assume anything, I will run the code, I'll assume anything, I'll assume 3। If I run this code, insert 20 at the beginning, insert 30 at the end, insert 50 at the end, what could be the answer? We'll see। So I'm taking at की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं हम, at हमने ले लिया 3। तो थर्ड इंडेक्स पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? See, this was the original value array। यहाँ से आप यहाँ तक भी देख रहे हो, ओरिजिनल अरे था 11, ये कोड में यहाँ लिख रहा है 11, 31, 51, 17, 18। अब यहाँ से नीचे ये जो आउटपुट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज आफ्टर इंसर्शन। जैसे फर्स्ट टाइम व्हाट इज आई डिड, इंसर्टेड 20। So if I insert 20 at this place, this 11 will be shifted towards this side। So what will happen? You will see 20, 11, 31, 51, 17। So 20, 11, 31, 51, 17. This will be like that। Let me modify it। I'll print everything in each step। So, now you can see after each step। तो अब पहली बार जब इंसर्ट हुआ था 20, so you can see यहाँ पे फर्स्ट इंसर्शन 20 के बाद यहाँ से 17, 18 is gone। Now after this I have inserted 30 at the end। So you can see simply 20, 11, 31, 20, 11, 31, 51, 30 है ना, 17 is simply gone ना, आपने एंड पे इंसर्ट कर दिया, वो आउट ऑफ ना अरे के साइज के बाहर हो गया। Then you what you did, you inserted something
एट थर्ड प्लेस 80 हमने 3 इनपुट किया था यूजर से, यहाँ पे पहली वैल्यू 3 लिया, वो इसको इस पार्ट के कोड के लिए है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अब वहां पे हमने 50 इंसर्ट किया है, तो विल सी 50 कहाँ है, तो यहाँ पे आया। थर्ड इंडेक्स इज दिस प्लेस here, you see third index is this place. Before that everything is fine, 20 11 31, you can see here 20 11 31 is same, and third index is replaced by 50, and this 51 is actually moved to fourth index. So that is what insertion means. If I run the same code for deletion, you will see so I'll run the code for deletion also. You say this यहाँ पे first index को आप delete कर रहे हो, if you're deleting this particular value 20, then everything should be from this place to this place, it should be shifted towards the beginning side. So 11 आगे 31 उसके बाद 51 उसके बाद 51 उसके बाद, और क्योंकि फोर्थ एलिमेंट को हम थर्ड पे ले गए तो 51 पे उसकी सिंपली एक कॉपी पड़ी है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रख दें जो हमारे इस कंटेक्स्ट में यूजलेस हो, उसका कोई पर्पस ना हो, या विच इज नॉट पॉसिबल ना टू गेट फॉर दिस कंटेक्स्ट। तो हमने ये 51, सो विल इग्नोर दिस। अगर आप यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट वैल्यू रखो, नेगेटिव पॉजिटिव रखो वैल्यू जो आपको आपके डेटा से रिलेटेड नहीं है, देन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ना डिलीटेड वैल्यू। सेम वे अगर हमने उसको एंड से डिलीट किया होता, तो एंड से डिलीट किया होता तो नथिंग, यू विल नॉट सी एनी चेंज, द डेटा विल बी स्टिल देयर, बट ना यू विल बी ट्रीटिंग इट एज गॉन। देन डिलीटिंग फ्रॉम एनी इंडेक्स, तो 80 हमने सेम यूज कर लिया, थर्ड इंडेक्स से ही वैल्यू डिलीट करा है। थर्ड इंडेक्स से डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, 51 को डिलीट करना है, राइट। सो इट इज नॉट मूविंग ना, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो हम इसे चेंज कर देते हैं एक बार, 80 की वैल्यू आई विल टेक 2। नाउ यू शुड सी बिफोर एंड डिलीशन पे 51 ही था, इफ आई डिलीटेड 31 देन व्हाट शुड हैपन, 51 should be shifted towards ना second element, so ये 51 second पे चला गया। Now you see the copy, only third and fourth is just a copy of the older data, which is nothing but the deleted items. So this is the code, and this is how you actually implement insertion and deletion in an array.